What's happening guys? My name is Harsh. Welcome back to Not So Harsh. आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू फॉर पीसमेकर सीजन 2 जो करंटली हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग कर रहा है. This is the latest new entry into the DCU directed and created by James Gunn which follows up उन्हीं की मूवी जो अभी इस जून में आई थी called Superman. ये नया सीजन takes us on an adventure that makes us hop different dimensions, has a lot of heart, a lot of humor and obviously the same James Gunn shenanigans that we all love. पर क्या ये सीरीज मैनेज करती है टू कैप्चर द सेम मैजिक जो सीजन 1 ने क्रिएट किया था? आज अनपैक करेंगे इन द रिव्यू. लेट्स गेट इनटू इट. सीजन स्टार्ट ऑफ होता है विद क्रिस स्मिथ प्लेड बाय जॉन सीना स्टम्बलिंग अक्रॉस एन ऑल्टरनेट डायमेंशन गलती से which turns out to be a dream. It is the best dimension possible. His dad and brother are still alive. He's in a relationship with Harcourt in this new dimension. Everybody loves him and he is actually considered a genuine superhero. ये सब देख के क्रिस kind of decides कि उसकी पिछले dimension में जो हमारी actual dimension है वहाँ already काफी problems चल रही हैं and because Rick Flag जिसके बेटे को उसने Suicide Squad में मार दिया था is also out for vengeance behind him. He decides कि मैं ये नई universe में ही settle in क्यों नहीं हो जाता. यहीं से हमारा एक mad adventure शुरू होता है and it takes so many twists and turns and it will leave you laughing, it will leave you crying and it will leave you with a lot of heartfelt emotions. सीरीज को एग्जैक्टली पता है अपने कास्ट और अपनी क्रू की स्ट्रेंथ्स को कैसे प्ले अप करना है. द डायनामिक बिटवीन द एंटायर क्रू इज फिनोमिनल एंड सो मच फन टू वॉच. यही सेम चीज ने एक्चुअली सीजन 1 को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाया था बिकॉज इनिशियली यू थिंक आप सिर्फ पीसमेकर को फॉलो करने वाले हैं एंड यू डोंट थिंक दैट द क्रू अराउंड हिम विल प्ले अ वेरी बिग रोल. बट देन जिस टाइप का कैरेक्टराइजेशन जेम्स गन ने सबको इंडिविजुअली दिया है, द प्रॉब्लम्स दे हैव, द काइंड ऑफ एसेट्स दे टर्न आउट टू बी, द थिंग्स दे ब्रिंग टू द टीम एंड देयर डायनामिक विद वन अनदर, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन वॉच है बिकॉज ऑफ दैट. एंड दिस शो काइंड ऑफ डाइज दैट टू 11 बाय इंट्रोड्यूसिंग इवन मोर कैरेक्टर्स इन द पॉकेट डायमेंशन जिनको सीजन 1 में रेफरेंस किया गया था, दिखाया था, बट बहुत ज्यादा पार्ट नहीं मिला था. I'm talking about Peacemaker's father and brother, who both of whom are still alive in this new universe. John Cena seems like he is having such a blast. वो इतना मजा कर रहे हैं इस रोल के साथ and you can see it very clearly. And बहुत चौंकाने वाली बात यह है that Peacemaker as a character and as an IP in DCU was something जिसको कोई नहीं जानता था. I have been a very big DCU fan for the past 10-15 years and Peacemaker in all stories जहाँ पे भी आया है has always been a very small part. कहीं पे भी एक बहुत बड़ा स्टोरी आर्क में या किसी भी मेन सीरीज में उसका बहुत बड़ा रोल नहीं था. But James Gunn being James Gunn, he knows exactly how to pick very obscure characters and knows how to inject them with a lot of heart, a lot of humor, जिसकी वजह से all of a sudden Peacemaker is the most interesting character that DCU currently has. Performances of the supporting cast are also phenomenal. जैसे मैं कह रहा था, उनके बीच में जो dynamics and जो complexity create की है जेम्स गन में, everyone feels like an actual human. सबके problems हैं, सबकी खुद की काबिलियत है, सबके खुद के quirks हैं and they all feel like people that we kind of see around each other. A group of misfits who have to work together, at least in this first season. But यहाँ पे that dynamic also evolves. They come together not out of need, but out of love and respect for each other. Eagly is a badass mofo, and I'm so glad James Gunn ने उसको एक इतना interesting and इतना epic sequence दिया है. And Vigilante, my favorite part of this show. अगर मेरे को Vigilante जैसा best friend मिल जाए, तो I will definitely end up becoming Batman in this world. Frank Grillo is back in the fold as well, अपने मैन ऑफ स्टील के कैरेक्टर को फिर से प्ले करते हुए एज रिक फ्लैग सीनियर, जो अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए पीसमेकर के पीछे पड़े हुए हैं. बट दैट्स नॉट हिज ओनली मोटिव. ही हैज सम अंडरलाइन मोटिव्स एज वेल, जिसकी वजह से ही थिंक्स पीसमेकर इज अ बिग थ्रेट एंड ही रियली वांट्स टू टेक हिम आउट. फ्रैंक ग्रिलो, अगर आपको नहीं पता हो तो ही प्लेड सम रियली कूल कैरेक्टर्स इन द पास्ट. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मंजे हुए एक्टर हैं एंड आई वुड लव टू सी हिम बिकम लाइक द न्यू निक फ्यूरी ऑफ द DCU, wherein obviously as and when हमें नए कैरेक्टर्स एंड न्यू मूवीज और दिखाई जाएंगी. एंड अब दैट ही इज द हेड ऑफ आर्गस, आई होप वो अमांडा वॉलर वाला एक रोल प्ले करेंगे, बट नॉट इन सच अ नेगेटिव वे, almost in a way जैसे निक फ्यूरी था, to end up creating the Avengers, getting all of these meta humans together to fight a much bigger threat. ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप एंड फ्लैश आउट करती है हार्कोर्ट एंड क्रिस स्मिथ के कैरेक्टर्स को भी, एंड द डायनामिक दैट इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन देम. दे हैव दिस स्पार्क बिटवीन देम बट नन ऑफ देम वांट टू एड्रेस इट, जिसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत फनी सिनेरियोस अराइज होते हैं, स्पेशली व्हेन ही एंटर्स द ऑल्टरनेट डायमेंशन एंड देयर ही सीज कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है अपनी डायमेंशन में, जो उसको बिल्कुल घास नहीं डाल रही है, यहाँ पे शी इज एक्चुअली विद हिम एंड दैट मेक्स हिम वांट टू बी इन दिस न्यू डायमेंशन ऑल द मोर. ये रिलेशनशिप इन सम शेप और फॉर्म बिकम्स द हार्ट ऑफ द स्टोरी, जहां पे द इमोशनल बिट, whatever Chris is going through, whatever Harcourt is going through,
is kind of conveyed beautifully, and how they're able to reconcile over the entire course of the series बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फ्लैश आउट करा गया है. एंड लेक्स लूथर का भी एक बहुत अमेजिंग कैमियो है फ्रॉम मैन ऑफ स्टील, एंड इट इज नॉट जस्ट अ थ्रो अवे कैमियो. आई एम सो ग्लैड दैट दे डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद इट. पूरी की पूरी सीरीज इज अ लॉट ऑफ फन टू वॉच. बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्क है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट इट इज अ कंप्लीटली परफेक्ट शो. अगर आप जेम्स गन के दूसरे प्रोडक्ट्स एंड उनकी मूवीज एंड सीरीज से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा दैट जेम्स गन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट इन म्यूजिक, एंड ही रियली लाइक्स इंजेक्टिंग म्यूजिक in a lot of his episodes, in a lot of his scenes to add momentum. But यहाँ पे कभी कभार I feel वो उन्होंने उसको इतना ज़्यादा कर दिया है क्योंकि every 5 minutes पे there is a new song that is playing, and थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा jarring लगने लग जाता है, because even though you are having fun with the songs, ट्रैक्स के भी मजे आ रहे हैं, ओवरऑल सीरीज के भी मजे आ रहे हैं, बट थोड़े टाइम बाद वो एक सॉन्ग आफ्टर अनदर सॉन्ग जस्ट फील्स लाइक आपने एक मिक्स टेप लगा दी है जहाँ पे रैंडमली गाने आफ्टर गाने आफ्टर गाने बजे जा रहे हैं. एक छोटा सा ग्राइप और कहूंगा मैं, इज दैट द फिनाले ऑफ द सीरीज is not, I would not say up to the mark, but is not the greatest. इससे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किया जा सकता था, I feel, because the entire series does a very good job of establishing all the characters, the story, the dilemma जो क्रिस स्मिथ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट फेस कर रहा है उसके लिए भी. बट जिस तरीके से वो लास्ट के 5-10 मिनट्स प्ले आउट थोड़ा सा एक अंडरवेलमिंग फीलिंग के साथ आपको छोड़ती है. बट दैट डज नॉट मीन दैट द स्टोरी इज बैड, बिकॉज ये तब भी आपको एक क्लिफ हैंगर पे लीव करती है दैट जेम्स गन हैज ऑलरेडी कन्वेड टू अस विल बी पिक्ड अप इन द नेक्स्ट मैन ऑफ स्टील मूवी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आने जा रही है. बाय द वे, इफ यू डिड नॉट नो, हमें नेक्स्ट ईयर सुपरगर्ल मिल रही है, एंड उसके नेक्स्ट ईयर फिर से सुपरमैन मिल रही है, विच विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ सुपरमैन आफ्टर द वन दैट वी ऑलरेडी सीन दिस ईयर. एंड ये स्टोरी जहां पे खत्म हुई है करंटली पीसमेकर की विल गो इन एंड टाइड डायरेक्टली इनटू दैट सुपरमैन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स share the screen in some very interesting ways, and the dynamic that James Gunn might be able to create between them is something I'm really looking forward to. Final thoughts में यही कहूंगा मैं कि this is a complete James Gunn product. अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है then this series has everything that you like. It has a lot of heart, it has a lot of humor, it is badass yet heartfelt. अगर आप क्रिस स्मिथ को या फिर अगर आप जॉन सीना को देखना चाहते हैं फिर से once again as the main title character called Peacemaker, and you really enjoyed the first season as well, you are bound to enjoy this one as well. Make sure that you guys watch this and then get ready for the upcoming next entry into DCU जो January में आने वाली है, which is called Lanterns. I cannot wait. I am so hyped to see Lanterns में ये क्या करने वाले हैं. 2011-12 में रायन रेनल्ड्स वाली जो मूवी आई थी उसके बाद this is going to be a first peek into Green Lanterns as a franchise and an IP. And James Gunn at the helm है. Again, he's not directing it, but he is definitely one of the main producers. He's the executive that is kind of fleshing out this complete story and arch जो DCU भी करंटली फॉलो कर रही है. सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये किस टाइप का टेक लेते हैं एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट एंट्री इनटू द DCU दैट टाइज इनटू पीसमेकर एंड सुपरमैन. ओवरऑल मुझे सीरीज में बहुत मजा आया एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू चेक इट आउट. छोटी मोटी गलतियां हैं बट अगेन नो सीरीज इज परफेक्ट, बट एज एन एंट्री इनटू द DCU अगर आप DC कैरेक्टर्स एंड पूरी अगेन यूनिवर्स के फैन हैं, दिस इज डेफिनेटली अ सीजन दैट यू शुड नॉट मिस. बहुत सारा हार्ट, बहुत सारा ह्यूमर, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे बैड एज सीन्स ऑब्वियसली सीरीज में है, एंड जेम्स गन इज बैक अगेन डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट. सीरीज देख ली हो तो कमेंट्स में हमें बताना व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिडंट लाइक. डिड यू थिंक दिस वाज अ परफेक्ट सीरीज? क्योंकि सीजन 1 को काफी लोग एक परफेक्ट सीरीज कंसिडर करते हैं. मेरे हिसाब से सीजन 1 वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई डेफिनेटली फील सीजन 2 फॉर मी इज अ मच बेटर सीरीज. Just that ending is something that did not land. Let me know guys in the comments below what you liked, what you did not like. Review में मजा आया हो तो एक thumbs up पक्का से drop करना. We have a lot more content on our channel. Make sure you check all of that out. My name is Harsh and I'll catch you guys in the next one. Bounce up on a Tuesday night. Straight legs home like a neon fight. Got a story but I keep it tight. Not so harsh, not so right.